periodic table and yesterday we did all about कि अगर अपन एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हाउ कैन वी नो अबाउट द ब्लॉक पीरियड नंबर ग्रुप नंबर टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स। आज बच्चे आप स्टार्ट करने हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स कि वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ metallic character non metallic character size of the atom size of the ions ये सब किमें चेंज होता है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच वी नीड टू डिस्कस इज द एटॉमिक रेडियस। सो बच्चे टुडे वी शैल डिस्कस द एटॉमिक रेडियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? ऑफ कोर्स एक एटम की रेडियस बच्चे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड लाइक इफ दिस इज एन एटम, so this is the radius of the atom, ठीक है ना। so इस radius को हम find out किने करेंगे? so बच्चे एक exact value, so you need to remember कि exact value of atomic radius is very difficult to find due to two reasons. first reason is बच्चे कि एक isolated atom मिलना अपन वैसे ही मुश्किल है। like for example हम अगर उसी iron की atomic radius find out करनी है तो उसी एक single atom के थ्रू लाओगे, है ना। So it is very difficult to find an isolated atom of an element. Second reason is कि the probability of finding the electron even at infinite distance कभी भी zero नहीं होगी। मतलब you can't ever say कि electron कितने तक मिलेगा। So first reason कि atomic radius अपन find out करना, exact value of atomic radius find out करना is near to impossible due to these two reasons. Number one, it is very difficult to get an isolated atom. So एक single isolated atom मिलना वैसे ही मुश्किल है बच्चे। Second reason, the probability of finding the electron, the probability of finding the electron even at infinite distance from the nucleus, infinite distance from the nucleus is never zero. So तुसी क्या नहीं समझे बच्चे कि इलेक्ट्रॉन कितने तक अपन को मिल सकता है। So ये दो रीजंस करके एक सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस तुसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हाउ डू वी फाइंड द एटॉमिक रेडियस? ठीक है, आप एक एटम की रेडियस तीन वेज नाल कैलकुलेट करते हैं। सो देखो बच्चे ये सारे पॉइंट्स तुसी जॉट डाउन कर लेने हैं, ठीक है ना। सो द एटॉमिक रेडियस इज फाउंड इन थ्री मैनर्स। सो आप तीन वेज नाल एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। First is called covalent radius, second is called van der Waals radius, and third is called metallic radius. देखो मुझे थोड़ी बहुत वेरिएशन तो आएगी, एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं फाइंड आउट होगी, बट स्टिल अपन when we deal with atoms and molecules we are already dealing with angstroms, बहुत छोटे छोटे distances, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। so first of all ये तीनों टर्म्स की होती हैं। now what do you mean by a covalent radius? covalent radius की होती है like for example H2 की गल कर रहे हैं, हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लवांगे। So a hydrogen molecule consists of two hydrogen atoms जो overlap हुए हुए हैं, है ना। This is their nucleus, ठीक है। हुन exactly the radius कितनी है? n, ठीक है। So आपा की करांगे, आपा एक internuclear distance लवांगे, ठीक है। ये दोनों a total distance measure कर लांगे दोनों के nucleus के विचकार का and उसको divide by 2 कर लांगे।
So the atomic radius, the covalent radius is equal to internuclear distance divided by 2. So this is called covalent radius बच्चे, ठीक है ना। आप एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल लवांगे, ਉਹਦੇ न्यूक्लियस का डिस्टेंस आपस में मेजर करांगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। नाउ कम ऑन टू वैन डर वाल्स रेडियस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, two molecules। so ये एक H2 है, ठीक है, another H2। वैन डर वाल्स बच्चे एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। एंड ਆਪਾਂ फर्दर चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਡਰ ਵਾल्स ਫੋਰਸਸ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾल्स ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਟਮਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਨ ਡਰ ਵਾल्स ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। इसको लेके अपन डिवाइड बाय 2 करांगे। सो देखो, सो वैन डर वाल्स रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent atoms of 2 nuclei of 2 molecules divide by 2। so बच्चे वैन डर वाल्स रेडियस किसके बराबर है, ਆਪਾਂ दो मॉलिक्यूल्स लवांगे, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। नेक्स्ट मेटलिक रेडियस, ऑफ कोर्स खुद बोल रहे हैं आप किने केस यूज करेंगे, इन केस ऑफ मेटल्स जिन्हें दो एडजेसेंट एटम्स होंगे, अगेन सेम। सो मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू अगेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स डिवाइड बाय 2। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਟਮਸ ਮੈਟਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਡੀਅਮ 2 Fe2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ Na Fe K ਐਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जबकि नॉन मेटल्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, H2 F2 Cl2 Br2 I2। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। एक मेटल के क्रिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾल्स ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ रेडियस, ठीक है। जो वैन डर वाल्स रेडियस है वो सब तो ज्यादा, मेटालिक रेडियस उस तो घट एंड कोवैलेंट रेडियस उस तो घट। एंड याद रखना कि जो कोवैलेंट रेडियस है दिस इज द इजीएस्ट टू कैलकुलेट, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, कोवैलेंट रेडियस। सब तो ज्यादा एक्यूरेट भी कोवैलेंट रेडियस है और इस करके ਆਪਾਂ कोवैलेंट रेडियस ही मोस्टली यूज करते हैं। जस्ट ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ केस कोवैलेंट रेडियस नहीं यूज कर सकते, इन केस ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस कंबाइन नहीं करਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ यूज कर सकते, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ यूज कर सकते। सो नोबल गैसेस ਦੇ ਵਿੱਚ रेडियस कैलकुलेट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हमेशा वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है ना। सो ये पॉइंट नोट कर लेना है कि in case of noble gases we always calculate van der Waals radius। so बच्चे these are the 3 major types of radii
which we use. So I repeat, covalent radius दो मॉलिक्यूल्स ਦੇ covalent radius एक मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡजेसेंट ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ एक मेटल क्रिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਡजेसेंट ਐਟਮਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤੇ ਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਨੋਬਲ ਗੈसेस, क्योंकि नोबल गैसेस ਦੇ मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, इसलिए नोबल गैसेस ਦੇ केस ਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚ ਵਾਈਲ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस जो अपन यूज करते हैं बच्चे। ठीक है ना? जस्ट एक अनदर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। वो ਆਪਾਂ बहुत ਘੱਟ यूज करते हैं, बट स्टिल एक बार ਸਾਨੂੰ पता जरूर होना चाहिए। सो देखो आयोनिक रेडियस ऑफ कोर्स किसके केस यूज करेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है? तो हम देखो सोडियम क्लोराइड इज मेड फ्रॉम अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ Cl2 ਦੇ ਕੇਸ ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ फॉर एग्जांपल सोडियम, सो दिस इज सोडियम प्लस, ठीक है, एंड लेट इट बी दिस इज Cl नेगेटिव। ठीक है? एक कोई गल है बिल्कुल सेम उसी तरीके नाल। सो पहला दा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेक कर लांगे। ठीक है? सो आयोनिक रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन डिवाइड बाय 2। सो आयनिक रेडियस किसके बराबर है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन डिवाइड बाय 2 बचे। ठीक है? सो these are the different types of radii which we use। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ when we move from left to right, ਜੋ ਐਟਮਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So बच्चे now we shall study कि how does the radius of an atom vary when we move from left to right in a particular period। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ periodic table ਚ ਇੱਕ particular period ਚ left to right ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ atomic radius ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब चेंज डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है या सेम रहती है। ठीक है? सो देखो आप एक पीरियड डिस्कस करांगे, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो बच्चे पहला मैं सोलर के लिए लिथियम बना रहे हैं। देखो लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हम देखो दिस इज लिथियम, इस सेंटर पे एक न्यूक्लियस है अवेलेबल एंड दो शेल्स है बच्चे। The first shell has 2 electrons and the second shell has a single electron। So अपने को 3 electrons है and 3 ही protons है बच्चे। ठीक है? Now बेरिलियम के केस की हो जाएगा, सेंटर पे न्यूक्लियस है, 2 शेल्स है, फाइन, इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, प्रोटॉन्स भी 4 हो गए, एटॉमिक नंबर इज 4। सो फर्स्ट शेल ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ
we move from left to right. So देखो, when we move from left to right, from lithium to beryllium, तो अपने को की डिफरेंस आएगा। देखो बच्चे शेल का सेम है ना, शेल की गिनती तो बड़ी नहीं है, वो नहीं है शेल, बट द प्रॉब्लम है कि इतने 3 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव चार्ज है, एंड इतने 4 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव चार्ज है, एंड वी नो कि द ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे ने वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अट्रैक्शन बन जाएगी तो जे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड हेंस द साइज विल डिक्रीज थोड़ा सा। नाउ यू मूव ऑन टू बोरॉन। सो बोरॉन का क्या हो गया बच्चे, एक एटॉमिक नंबर और इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी 5, प्रोटॉन्स भी 5। So first shell 2 electrons, next shell there are 3 electrons. So हम 5 नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ 5 पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ਦਾ अट्रैक्ट कर रहे हैं, so core size decrease ਹੁੰਦਾ जाएगा। So while moving from left to right in a period, the atomic radius will go on decreasing। उसका रीजन ਕੀ है, ਤੁਸੀਂ रीजन की स्पॉट करोगे कि the nuclear charge is increasing while the number of shells remains the same। The electrons go on adding into the same shell, ताकि बच्चे shell same है बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बदल करके जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जो न्यूक्लियर चार्ज है इट इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव को अपनी तरफ और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो जो वो और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर को आ जाएंगे एंड द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। सो while moving from left to right in a period, the size of the atom goes on decreasing। So बच्चे इस पीरियड में which lithium का साइज सबको बड़ा होगा, small, smaller, 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 smallest, smaller, smallest। noble gases का साइज इतना तो बड़ा होगा। The reason being अब पहले ही कर लिया कि noble gases के केस we calculate van der Waals radius, ना कि कोवेलेंट या मेटालिक रेडियस। डन बच्चे। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग बच्चे, ठीक है ना। नाउ वी शैल मूव ऑन टू की हाउ डज इट वेरी अलोंग अ ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप दे विच व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस है हाउ डज इट वेरी। सो अगेन वी टेक so what's a variation along a group। so again we take one particular group, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium। so what's atomic number is 3, 11, 19, 37, 55 and so on। ਹੁਣ बच्चे की होएगा, now electrons and protons तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप पिछले लॉजिक के हिसाब से सोचिए अकॉर्डिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर एकदम जंप कर रहे हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज इज जंपिंग, लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज इज 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 37 प्लस। सो एटॉमिक रेडियस शुड डिक्रीज एंड डिक्रीज बाय अ लार्ज अमाउंट, बट नहीं। देखो हुन इथे सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, ठीक है, but the shells remain the same। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, lithium is 2, 1 fine, sodium now 2, 8, 1। so बच्चे shell same नहीं है, shell the number is increasing। potassium 2, 8, 8, 1। So how do we explain this? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ while moving from top to bottom in a group, number 1, nuclear charge
is increasing, of course. न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ रहा है ना? So न्यूक्लियर चार्ज बदल करके size should decrease. तो बच्चे साइज डिक्रीज होना चाहिए, of course, है ना? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो नंबर ऑफ शेल्स, हर एक एलिमेंट के नाम एक एक शेल ऐड हो रहा है. शेल ऐड होन करके द साइज शुड इंक्रीज. शेल इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होना चाहिए. सो दोनों फैक्टर्स की हो गए ऑपोजिट. नाउ अ थर्ड फैक्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चे, इसमें ध्यान नाल समझना है एंड ध्यान नाल करना है. सो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट? पहला ये पता होना चाहिए. एक ही है जो अंदर वाले शेल्स दे इलेक्ट्रॉन्स होंगे हैं बच्चे, दे शील्ड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस दी अट्रैक्टिव फोर्स तो बचाते हैं. ठीक है ना? जिदा कि मैं एक सिंपल जी एग्जांपल देके देखता हूं. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मी अ टीचर, मैं इथे खड़ के बच्चों को पढ़ा रहा हूं. कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट बेंच पे बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स सेकंड बेंच, कुछ स्टूडेंट्स थर्ड बेंच एंड सो ऑन. अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो ऑफ कोर्स टीचर कैन हिट हिम और हर, है ना? तो अगर मैं फर्स्ट बेंच के बच्चे को हिट कर रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत इजी है. सेकंड बच्चे को हिट करना विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि जो फर्स्ट बेंच है दैट विल एक्ट एज अ शील्ड, अ स्क्रीन. और जो फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स है वो सेकंड बेंच के बच्चों को मेरे तो शील्ड करेंगे, स्क्रीन करेंगे. हुन थर्ड बेंच को हिट करना और भी मुश्किल हो जाएगा. तो हो सकता है कि फोर्थ बेंच तक जाने जाते मैं तो हिट हो ही ना. यू गेटिंग अ पॉइंट? सो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पुल तो आला शेल बचा रहे हैं. ऐसे दो शेल्स बचा रहे हैं, ऐसे तीन शेल्स बचा रहे हैं. सो जी स्क्रीनिंग होती है, शील्ड होती है, ढाल जिन्होंने कहते हैं आप, प्रोटेक्टिव फील्ड. वो प्रोटेक्टिव शील्ड जी हैगी है वो इंक्रीज हो रही है. सो जो वो इंक्रीज होगी, सो बच्चे जो वो इंक्रीज होगी तो शील्ड इंक्रीज होने करके जो न्यूक्लियस की पुल है वो नहीं लगेगी. जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कमजोर हो जाएगी. जो कमजोर हो जाएगी तो ऑफ कोर्स द साइज शुड अगेन इंक्रीज. सो इसलिए करके भी साइज शुड, सो साइज शुड इंक्रीज. यू गेटिंग अ पॉइंट? सो साइज फिर बदलना चाहिए बच्चे. सो मेरे को एक फैक्टर है जिसके करके साइज डिक्रीज होना चाहिए, दो फैक्टर्स ने जिसके करके साइज इंक्रीज होना चाहिए. सो ये दो फैक्टर्स का जो असर है वो एक फैक्टर ने इफेक्ट के ऊपर हैवी हो जाएगा. ठीक है ना? एंड दैट इज व्हाई व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जो साइज है ऑफ एन एटम दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. यू गेटिंग अ पॉइंट? सो वेरी इजी. पीरियड में विच इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. ठीक है? एंड द नंबर ऑफ शेल्स विल रिमेन द सेम. ग्रुप के विच व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का नो डाउट बढ़ रहा है, बट नाल शेल्स बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहे हैं. ठीक है ना? तो इस करके जितना न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर लगना चाहिए सी उतना न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर नहीं लगेगा. एक टर्म होती है बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट. तुसी बच्चे कितने नोट कर सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट. सो न्यूक्लियर चार्ज का देखो जो है बट शील्डिंग इफेक्ट नीचे आने बढ़ी जा रहे हैं. तो शील्डिंग इफेक्ट बदल करके जो
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो जो न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स द साइज विल इंक्रीज, ठीक है ना। सो अगेन आई रिपीट, while moving from left to right in a period, the size will go on decreasing, and while moving from top to bottom in a group, the size will go on increasing. So now the next topic is ionic radius, means radius of ions, यानी कि cation या फिर anion. So एक चीज इसमें विच हमेशा याद रखनी है कि cation the radius पैरेंट एटम तो हमेशा छोटी होगी और एनायन की रेडियस पैरेंट एटम तो हमेशा बड़ी होगी। द रेडियस ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पैरेंट एटम, व्हाइल द रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पैरेंट एटम। व्हाट इज द रीजन की है बच्चे? सो मैं एक सिंपल जी एग्जांपल देके समझाना है। सो देखो, लेट इट बी वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम एंड सोडियम प्लस। ਹੁਣ ਸੋ क्वेश्चन है कि सोडियम या सोडियम प्लस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। सो देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सो सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके की बन गया सोडियम प्लस, यानी कि सोडियम प्लस में कुल इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीज हो गया, प्रोटॉन सेम है, न्यूक्लियर चार्ज सेम है। इथे 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स को, इथे 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को। सो किदे ऊपर उनका होल्ड, उनकी पकड़ ज्यादा होएगी 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियर चार्ज हैज इंक्रीज्ड। यू गेटिंग अ पॉइंट? एक सिंपल सा फंडा है, इथे 11 इलेक्ट्रॉन्स को 11 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं, इथे 10 इलेक्ट्रॉन्स को 11 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं। सो पर वन इलेक्ट्रॉन the nuclear charge has increased, so इस करके जो न्यूक्लियर होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड हेंस द साइज विल डिक्रीज। सो जो कैटायन है, सिंस इट इज फॉर्म्ड ऑलवेज विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा पर इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई द साइज विल डिक्रीज। सो अ कैटायन का साइज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स पैरेंट एटम। सिमिलरली जो एनायन होएगा, we take the example of chlorine and Cl negative, atomic number 17। इसमें कुल बच्चे 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स है, जबकि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18 एंड प्रोटॉन्स आर सेम 17। सो नाउ बिल्कुल इसका रिवर्स, हुन इसमें कुल बच्चे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सी दैट हैज नाउ डिक्रीज्ड। सो न्यूक्लियस की ਜਿਹੜੀ होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पहला के मुकाबले की होगी वीकर, एंड वीक होने करके न्यूक्लियस की होल्ड कमजोर होगी एंड कमजोर होने करके उसका साइज की हो जाएगा इंक्रीज। सो एनायन का साइज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन साइज ऑफ द पैरेंट एटम। एंड बच्चे कैटायन के केस का तुम ये देखो कि कई बार की होगा पूरा शेल ही उड़ जाता है, कंप्लीट शेल इज लॉस्ट। देखो यही एग्जांपल सोडियम वाली, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सो इट इज 2, 8, 1, so it has 3 shells। now sodium plus, it is 2, 8, 1 electron has been lost, so पूरा shell ही गया, so the size will decrease considerably। But this is an altogether different logic. So the point to be remembered is the size of a cation is always less than that of the parent atom, while the size of the anion is always greater than that of the parent atom. ठीक है? So बच्चे, the next and the last topic for today is the radius of isoelectronic ions. So बच्चे अपने last चैप्टर कीता सी कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की दुनिया है ना। द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वर दो स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। हुन बच्चे अपन ने कंपेयर करनी है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक ਜਿਹੜੀਆਂ स्पीशीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रेडियस ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है ना। हाउ डज द रेडियस वेरी?
उसके लिए अपन एग्जांपल तो स्टार्ट करावे बच्चे, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अपन नियॉन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि नियॉन इज अ नोबल गैस, वो तो आयंस बनाएगा ही नहीं, ठीक है ना। सो वी कैन टेक डायरेक्टली सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 एंड सो ऑन। हुन देखो बच्चे, दे ऑल हैव different atomic numbers, so different number of electrons and different number of protons. So देखो nitrogen atomic number 7, so it has 7 electrons and 7 protons. Oxygen has 8 electrons and 8 protons. Fluorine has 9 electrons and 9 protons. Sodium has 11 electrons and 11 protons. Magnesium 12 electrons and 12 protons. Aluminium has 13 electrons and 13 protons. Now we know कि nitrogen the outermost shell कितने electrons है? 5 electrons. Electronic configuration की बनेगी nitrogen की, first shell 2, second shell 5. So इसको स्टेबल होने के कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? It needs 3 more electrons. So नाइट्रोजन स्टेबल होने के 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. So नाइट्रोजन आयन की वैलेंसी कितनी होती है? -3. So 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10. I hope done. So नाइट्रोजन कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स थी, आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक ही हो गया 2,8, तो इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. प्रोटॉन्स वाले भी कितने हैं? 7. ऑक्सीजन 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसके कुल भी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, 2,7. सो आउटरमोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. सो -1 होने देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. सोडियम फर्स्ट शेल्स 2, देन 8, देन 1, 2,8,1. एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, अपना आउटरमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी की बन गया 2,8 सोडियम प्लस, सो इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम बचे 2,8,2, ये 2 लूज करेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इट विल बिकम +3, so 10 electrons again. Done. So they all have now 10 electrons each. सब the outer electronic configuration की है 2,8, 2,8 and 2,8. But number of protons देखो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. So nuclear charge is increasing. So maximum nuclear charge ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 13 protons, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7 protons. So जो आपने पहला लॉजिक ਕੀਤਾ है रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन ਦੇ ਵਿੱਚ, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होएगा पर इलेक्ट्रॉन उतनी ही होल्ड ज्यादा होती जाएगी. ਇੱਥੇ 10 इलेक्ट्रॉन्स को 7 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं, ਇੱਥੇ 9 खींच रहे हैं, ਇੱਥੇ 11, ਇੱਥੇ 13. सो मैक्सिमम कौन खींचेगा? 13 ऑफ कोर्स. डन. खींचना तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट न्यूक्लियर होल्ड बढ़ता जा रहा है, सो साइज विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सो इसका साइज सब तो ज्यादा होएगा and इसका साइज सब तो कट होएगा. So this is about the ionic radius in case of isoelectronic ions. So बच्चे ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ कि isoelectronic ions the case means जिन्ना को same number of electrons है, जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होएगा, जिन्ने number of protons ज्यादा होंगे उतना साइज छोटा होएगा. ठीक है. So point to be remembered कि size of isoelectronic ions inversely proportional to the nuclear charge. अब ऐसे लिख भी लेते हैं size of isoelectronic ions
is inversely proportional to nuclear charge. जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा साइज छोटा होगा. So बच्चे this is it for today. आज अपन ने स्टडी किया एटॉमिक रेडियस. अपन ने किया से एटॉमिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 डिफरेंट मैनर्स. कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस. जिन्हें which are most frequently used is कोवेलेंट रेडियस. Except for noble gases जिन्हें केस अपन यूज करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस. फिर अपन ने किया से कि एक पीरियड में which while moving from left to right in a particular period the atomic radius goes on decreasing क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है and number of shells remains the same. In a group while moving from top to bottom the atomic radius decreases. Sorry, the atomic radius increases because no doubt the nuclear charge increases but at the same time the number of shells and the shielding effect goes on increasing जिससे करके effective nuclear charge goes on decreasing and hence the size increases in a particular group while moving from top to bottom. फिर अपन ने किया radius of ions, ionic radius. उसदे विच अपन ने किया कि a cation the size is always smaller than that of the parent atom while the size of an anion is always greater the size of the parent atom. फिर अपन ने end में किया isoelectronic species, the species which have the same number of electrons. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ कि if two ions have same number of electrons that ion will have the smaller radius which has greater number of protons या higher nuclear charge. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है. We'll meet at the same time for the doubts that is 6 PM in the evening. Thanks a lot बच्चे.